Hello everyone. Welcome to Math is an Art. My name is Mehak and today I will start with rectangles. This is lecture number 4. I have already covered triangles, polygons and parallelogram. You can watch that video also. So let's start with rectangles today. So I have already covered parallelogram. So do you know how a parallelogram can be converted into rectangle? यस यू हर्ड इट राइट. हम कैसे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में चेंज कर सकते हैं. सी द ओनली डिफरेंस हेयर आई कैन से इज कि जो हमारे पास ये फिगर है इसमें द एंगल हेयर इज नॉट 90 डिग्री. if this angle changes to 90 degree then we can say that the figure here is a rectangle like this. Now you can see the angle here is 90 degree exactly. This is a right angle. So now this figure is what? This figure now is a rectangle. Let us see once more. Parallelogram. Just a little shift, it it becomes rectangle, right? So that's why I told you that rectangle is also a form of parallelogram. Yes, जो rectangle होती है वो भी एक तरह की parallelogram ही होती है. Cause opposite sides are equal and parallel. Let us give it a name ABCD. Opposite side AB is equals to DC, right? And AD is equal to DC. Also, they are parallel. So we can say that this rectangle is also a parallelogram. Okay. So let us move on to its properties. Now property number 1 says that a rectangle is a quadrilateral. Yes, of course. When I taught you polygons, so there we studied that a figure with four sides, closed figure with four sides is known as a quadrilateral. क्योंकि रेक्टेंगल में यहाँ पे ए बी बी सी डी सी और ए डी ये फोर साइड्स है हमारे पास और एक क्लोज्ड फिगर है एंड सारी साइड्स कैसी हैं और सारी जो साइड्स हैं दे आर मेड अप विद स्ट्रेट लाइंस. So that's why this is a quadrilateral. Okay, this is a name given to polygon having four sides. Quadrilateral क्या होता है? This is a name given to polygon having four sides. ओके तो सारे के सारे चाहे हम बात करें रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सभी के सभी क्या होते हैं? दे ऑल आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल इन जनरल. ओके. So second point, the opposite sides are parallel and equal to each other. As we have already discussed this point, कि जो opposite sides होती हैं वो parallel भी होती हैं and they are equal to each other. Okay. Next point is each interior angle is equals to 90 degrees. ये भी हमने अभी देखा animation में. That इसके सारे interior angles, the blue one marked here, these all angles are of 90 degree. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. वेरी ऑब्वियस, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पॉलीगन्स में. पॉलीगन में हमने पढ़ा कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कैसे निकालते हैं हम? n-2 इंटू 180 डिग्रीज. यहाँ पे मेरे पास n क्या है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स. यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4. तो व्हेन आई पुट हियर 4, व्हाट विल आई गेट? 4 minus 2, 2 into 180, I will get 360 degrees, right? सो सम यहाँ पे सम कितना आएगा? अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें, सिर्फ रेक्टेंगल की बात नहीं है. यहाँ पे आप रेक्टेंगल लो, एनी यू कैन टेक एनी क्वाड्रेंट क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड्स होती हैं तो सबका सम कितना आएगा? ऑलवेज इट विल बी 360 डिग्रीज. एंड यू कैन हियर यू कैन चेक वेरी इजीली. दिस इज 90, 90 plus 90 plus 90 plus 90. These all angles add up to 360 degree. Okay. Next property is also very important. The diagonals bisect each other. This property is similar to parallelogram. ये property same थी. वहां पर भी जो हमारी diagonals थी वो bisect कर रही थी और यहाँ पर भी bisect करती हैं. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जो AE है वो EC के equal है. AE is equals to EC and DE is equals to EB.
जो ये सिंबल है दिस इज टू रिप्रेजेंट कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। ओके ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का। सो सिंगल लाइन जहां जहां पर भी है मतलब कि वो इक्वल है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी एंड डी ई इज इक्वल्स टू ई बी। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्ट कर रही है, दे आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट ई, ये हमारा पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं थी। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल कौन सी है, डायगोनल होती है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे लाइन, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जो लाइन ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे, लाइक AC एंड BD। तो यहाँ पे क्या है, AC और BD इक्वल है, लेंथ इक्वल है, पर इन केस ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल नहीं थी। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, वी नेम्ड रेक्टेंगल एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हमने ऐड कर दी। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी मैंने ऐड करी कि मैंने जो एंगल बनाए 90 डिग्री के बनाए, और दूसरी प्रॉपर्टी अब इसमें कौन सी एक्स्ट्रा आई है कि जो डायगोनल्स आर इक्वल। ये दोनों प्रॉपर्टीज वहां पर मिसिंग थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्पेशल। डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने ऐड कर दी पैरेललोग्राम में। लास्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर। चलो यहाँ पे इंटीरियर नहीं, यहाँ पे एक्सटीरियर आएगा, क्योंकि हम इंटीरियर की बात पहले ही कर चुके हैं, एक्सटीरियर की बात करेंगे। अब जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उन सबका सम भी कितना होने वाला है, 360। यू कैन सी वेरी इजीली हियर, लेट अस टेक अनदर कलर लाइक। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करें, इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो सारे एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, 90 के बनेंगे, 90 90 90 एंड 90। तो जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम भी कितना होने वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 360 डिग्रीज। और हमने पॉलीगन में ये बात भी पढ़ी थी दैट इन जर्नल्स, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो, जितनी मर्जी नंबर ऑफ साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्रीज ही होता है, ऑलवेज। चाहे ट्रायंगल लो चाहे कुछ भी ले लो, यू कैन टेक अ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन ले सकते हो, कुछ भी ले लो, सबका सम कितना होगा, ऑलवेज इट इज 360 डिग्रीज। ओके सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं। नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मूलाज। ओके अगर आपको कोई डाउट है, डोंट वरी, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, नेम सेम है, मैथ्स इज एन आर्ट, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और द कमेंट्स में मिल जाएगा। So you can ask your doubts there, okay, if any. So फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे पैरीमीटर का और दूसरा है एरिया का। ये आपने फॉर्मूलाज बहुत बार देखे होंगे। पैरीमीटर का फॉर्मूला ये बना कैसे, हम आज ये देखेंगे कि फॉर्मूला होता क्यों है ये 2 into l plus b। डिस्कस हमने वैसे पहले भी करा। तो इसको अगर मैं लेंथ बोल दूं, ये मेरी लेंथ है, तो बिगर साइड को हम लेंथ बोलते हैं, दिस इज l। और जो शॉर्टर साइड है उसको हम ब्रेड्थ बोल देते हैं, ब्रेड्थ बोल सकते हैं, विड्थ भी बोलते हैं। ओके ये आएगा यहाँ पे, तो दिस इज, इसको नेम दे रहे हैं हम बी। ओके नाउ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि बाउंड्री, जो ये बाउंड्री है इसकी, दिस वन द बाउंड्री, इन बाउंड्रीज को ऐड करना पेरीमीटर होता है। तो अगर मान लो अगर आप यहाँ पे, ये कोई पार्क है, मान लो आप यहाँ पे हो और आप इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू करें, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ मैथमेटिकली, कि आपने इसका पेरीमीटर कवर कर दिया। ओके सो यहाँ पे क्या है, ये साइड क्या है, मान लो आप यहाँ पे थे, आप चल के यहाँ तक इस पॉइंट तक आ गए हो, तो आपने एक लेंथ कवर कर ली, प्लस अब आप यहाँ से अब यहाँ पे आ गए हो, इस वर्टेक्स पे आए हो, तो ये क्या है, हमारी ब्रेड्थ है। फिर उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर आपने एक लेंथ कवर करी। लेंथ क्यों कह रही हो, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स तो इक्वली होते हैं, देन आई विल राइट एल। फिर आप यहाँ से यहाँ तक आए, फिर से आपने क्या कवर करी, ब्रेड्थ कवर कर ली। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2l plus 2b। 2 को कॉमन लेने पे हमारे पास हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर का। ओके अब हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया का फॉर्मूला जो है ये बना कैसे, तो उसके लिए ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है, राइट। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे स्क्वायर। इसका नाम मैं क्या दे रही हूँ, दिस इज अ यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका एरिया कितना हो, 1 यूनिट हो, मतलब कि इसकी साइड कितनी है, 1 का है, इसका एरिया कितना है, 1 यूनिट स्क्वायर का इसका एरिया है। तो अगर
यहाँ पे लाइन में पूरे 4 ऐसे यूनिट एरियाज आ गए, तो इसका एरिया कितना है 1, इसका भी कितना है 1, इसका भी कितना है 1 एंड 1। तो ये टोटल इसकी लेंथ में कितने यूनिट एरियाज आए, 4 यूनिट एरियाज की लेंथ में आ गए। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी लेंथ थी उसका उसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ की लेंथ कितनी थी, या दैट वाज 4 यूनिट्स, जितना भी हो, सेंटीमीटर मीटर जो मर्जी यूनिट हो आपकी, तो 4 यूनिट्स लेंथ थी। अब अगर हम ब्रेड्थ में भी ले लें, तो अगर इसके ब्रेड्थ काउंट करना चाहो तो ब्रेड्थ में कितना आ रहा है, कितनी लेंथ आ रही है ब्रेड्थ की, दैट इज 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स का है। ठीक है, अगर हम ऐसे सारे बॉक्सेस लेते जाएं तो कितना आएगा, 1 1 एंड 1, तो कितने बॉक्सेस हो गए टोटल, 8 हो गए, 8 है ना। तो इसका एरिया कितना आएगा पूरे हमारे रेक्टेंगल का, दैट इज 8 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट मेरा एरिया आ गया। तो अगर कभी आपने बचपन में काउंटिंग करी हो, मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइंस हैं और n नंबर ऑफ रोज हैं, अगर आपको बोल दे कोई काउंट करो, आप तो काउंट करते पूरी जिंदगी निकाल दोगे, काउंट करते रहो बॉक्सेस को बैठ के 1 2 3 4, दैट इज हार्ड। तो उसको करने का इजी वे आपने कभी सीखा भी होगा कि वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द लेंथ एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द ब्रेड, और उनको मल्टीप्लाई कर दो। दिस वर्क्स इन द रियल लाइफ टू, ये बहुत बार ही बहुत जगह अप्लाई होता है। मान लो अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ये मान लो एक एरिया है, एक कोई फील्ड है, वहां पे ब्रिक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी ब्रिक्स रखी हैं, अब आपको ब्रिक्स को काउंट करना है, तो कोई इतना स्टूपिड तो होगा नहीं कि एक ब्रिक को काउंट करेगा, नो, आप सिर्फ लेंथ में ब्रिक्स को काउंट करो और ब्रेड्थ में काउंट करो एंड मल्टीप्लाई देम। ओके, यहाँ पे तो हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विल गेट अर फुल एरिया, इन केस हेयर इन दिस केस 4 multiply 2 is 8, as you can see. ओके, एक और होता है हमारे पास फॉर्मूला, अगर आपको निकालनी हो डायगोनल, तो अगर हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो एनीवेज, अगर मेरे पास ये एल है और ये बी है, ओके, लेंथ और ब्रेड्थ जो भी इसके यहाँ मेजर हो, ये मेरे पास एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अगर आप नोटिस करोगे ये मेरे पास कौन सी ट्राइंगल बन गया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा कि हम अगर हमें ये क्या है उसकी, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो हमने ट्राइंगल्स में ऑलरेडी कवर करा है कि अगर ऐसा हो then we can use Pythagoras theorem to find this hypotenuse। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, h square is equals to p square plus b square। इस केस में मेरे पास ये मेरा बेस है, ये मेरे परपेंडिकुलर है, तो अगर वैल्यूज पुट कर दे यहाँ पे बी स्क्र प्लस एल स्क्र, जो मर्जी पुट करो, सो एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्र प्लस बी स्क्र। मतलब अगर आपको एक रेक्टेंगल की डायगोनल फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ क्या है, देन यू कैन डू दिस, अंडर रूट ऑफ एल स्क्र प्लस बी स्क्र। ओके, let us do some questions and practice these concepts। So पहला क्या है, if the length and breadth of rectangle are 8 centimeter and 5 centimeter respectively, find its area and perimeter। अब हमें एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 5, फॉर्मूला ही लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, which is what 8 multiply by 5, 8 5 the 40। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखते हैं, शॉर्टकट्स तो हर जगह लगते रहते हैं। सो इफ आई एड दिस इन डिटेल, 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, then I will get 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो 8 5 the 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। सो 2 लिखा, एल कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, बी क्या है 5 सेंटीमीटर, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 5 होता है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया। अब ऐड करते हुए हम, अब स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अब हम ऐड कर रहे हैं, ओके, तो एडिंग में हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते हुए हम स्क्वायर लगाएंगे। 13 टू द is 6 and 2, 26 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चन। आप ध्यान रखो यूनिट्स का कि कब हमने कौन सी यूनिट लगानी है, तो आप मुझे याद रख सकते हो, एरिया के केस में हमेशा स्क्वायर आएगा और पेरीमीटर निकालो, क्योंकि पेरीमीटर एक लेंथ ही निकाल रहे हैं हम, तो उसके केस में सिर्फ सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो भी आपको यूनिट दे रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if breadth and the diagonal of rectangle are 6 and 10, जो क्वेश्चन में डिस्कस करा, ब्रेड्थ हमें 6 दे रखी है
और डायगोनल हमें 10 दे रखी है। फाइंड इट्स लेंथ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लेंथ लिख देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस हमारी लेंथ का स्क्वायर। ओके, सो लेंथ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 6 के कितना होता है 36, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 64, जो कि होता है अंडर रूट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 8। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों डाला, आपको ये बात पता है? बहुत सिंपल रीजन है उसका, क्योंकि अगर हम प्लस 8 का स्क्वायर करें वो भी 64 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर करें वो भी 64 होता है। तो अगर अंडर रूट से बाहर कुछ निकाल रहे हैं तो उसके दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं टीचर्स में। ओके, तो अभी यहाँ पे हम बात करें लेंथ की, कभी भी किसी चीज की लेंथ नेगेटिव थोड़ी ना होती है, आपके पास छोटी सी पेंसिल भी क्यों ना हो उसकी लेंथ भी नेगेटिव थोड़ी ना होगी। तो लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो हम नेगेटिव को रिजेक्ट करते हुए अपना आंसर क्या मान के चलेंगे, दैट इज +8। तो हमारे पास ये क्या बन चुका है, 6, 8 और 10 हमारे पास क्या आ गया, हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो कि हमने डिस्कस करा था ट्रायंगल्स में। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं अभी हम। The rectangle has perimeter of 320 meters. हमारे पास perimeter given है 320 meters का। ओके, and its length is 3 times its width. Width या breadth एक ही चीज होती है, don't confuse, get confused। अभी क्या बोल रहे हैं, its length is 3 times, जो हमारी length है वो क्या है, वो 3 times है किसकी, width की। मतलब अगर मान लो अगर मेरी विड्थ 1 सेंटीमीटर की है तो लेंथ उसकी 3 गुना होगी, मतलब कि 3 सेंटीमीटर हो गई। ओके, इसका मतलब ये है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। तो लेंथ मेरे पास, लेंथ को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2w और 2b लिख दे, 3b लिख देते हैं यहाँ पे, विड्थ या ब्रेड्थ जो मर्जी बोलो, डिफरेंट नेम। यहाँ पे मैं एल की जगह पुट करती हूँ 3b प्लस b, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4b, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8b। अब मेरे पास पेरीमीटर यहाँ पे आ रहा है 8b, दिया हुआ था 320 है, तो वो पेरीमीटर ही दोनों को रखते हैं इक्वल। तो 320 इज इक्वल्स टू 8 इंटू बी, तो यहाँ पे अगर b फाइंड करना है तो कितना आएगा 320 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। जो सॉरी मीटर यहाँ पे यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं आएगा तो मीटर लगाएंगे, जो यूनिट यूज है वही यूनिट हम यूज करेंगे। तो हमने ब्रेड्थ तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करनी होगी लेंथ। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ इसकी 3 टाइम्स थी। अगर मेरी ब्रेड्थ 40 है तो लेंथ उसकी 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120 मीटर्स। हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स विड्थ लेंथ एंड एरिया, हमें एरिया ही पूछा है, तो एरिया के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाय बी, तो कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 40, 4800। यूनिट क्या रखेंगे, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 फीट। अब हम फीट यूनिट आ गई हमारे पास, पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, इट इज 50 फीट, और हमें एरिया दे रखा है 150 फीट। कहते हैं फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सच दैट लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। लेंथ बड़ी है विड्थ से, ऐसी हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। हमें अब एल भी नहीं दे रखा, हमें सिर्फ पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू, अब हम ऐसे करते हैं लेंथ को x बोलते हैं और ब्रेड्थ को हम y बोलते हैं। ओके, वैसे मर्जी है, इफ वांट टू डू आप एल भी लेके भी कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, हमें कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 25। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एल मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एल इंटू बी, कितना आ गया मेरे पास 150। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन चुके हैं दो वेरिएबल्स में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड अपना सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हम x निकालेंगे, कितना हो सकता है x 150 बाय y, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, एंड देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। x की वैल्यू पुट करेंगे 150 बाय y प्लस y इज इक्वल्स टू 25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं 1 लगा लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, y आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल राइट हियर, सो ये कितना आएगा 150 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 वाई।
इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, वाई स्केयर माइनस 25y प्लस 150 इज इक्वल टू 0, जो कि एक बन चुकी है क्वाड्रेटिक। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है वेरी गुड, अगर आपको नहीं आती देन यू कैन वॉच आवर वीडियो। मैंने 10th क्लास में जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके उसको सारा सॉल्व किया हुआ है एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी एवरी पार्ट इन डिटेल कि कैसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से कर सकते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कैसे हम स्प्लिटिंग से इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यू कैन वॉच दोज वीडियोस। ओके, आपको हम यहाँ पे आई बटन पे दे देंगे उसका जो लिंक होगा। सो अभी इसको सॉल्व करना है। देयर आर मेनी वेज, तीन तरीके हैं, हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, बट आई एम फाइंडिंग इजी इज द स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग से करेंगे, मुझे वो इजी लगता है। क्यों? हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको प्लस माइनस करे पे कितना आना चाहिए, -25y, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 150। ऐसे दो नंबर ढूंढने मेरे लिए तो बहुत आसान है। अगर आपके लिए आसान नहीं है देन यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, वो दो नंबर बहुत इजी, 15 और 10। 15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। हमें नेगेटिव चाहिए पर इनको ऐड करने पे तो +25 आएगा, तो मैं इन दोनों नंबर को नेगेटिव रखूंगी ताकि -15 इंटू -10 कितना आ जाए, प्लस का 150, और इनको ऐड करके कितना है -25। ओके, सो यहाँ पे पुट करते हैं वाई स्क्र -15y -10y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा y -15। वैसे मैंने इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है वहां पे, एक बार आपको मैं भी बता दूंगी वैसे कि कैसे फास्ट कर सकते हैं, कॉमन का पार्ट नहीं करना पड़ता इस केस में हमको। तो हम यहाँ से y कॉमन लिया, यहाँ से -10 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, y प्लस, सॉरी y नेगेटिव भी आएगा क्योंकि हमें प्लस का साइन है, +15। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, y -15 कॉमन लिया, नाउ आई हैव y -10। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, आई हैव द शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। मोर ओवर आप हमारी वीडियोस भी पूरी की पूरी देख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं क्या कैसे कर सकते हैं उसको छोटे में। अगर तो ये हमारी इक्वेशन थी, राइट, दिस इज वाज माय इक्वेशन। अगर बाईस के कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 हो, ओनली इफ इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, और हमारे जो हमने जो नंबर्स फाइंड करे हैं वो थे -15 और -10, राइट। तो आप एग्जैक्टली क्या करो, उनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करो, वही हमारा आंसर होगा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट ओनली इन द केस कॉफिशिएंट 1 है। अगर कॉफिशिएंट 2 हो तो हमें इनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपने आंसर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ है। ओके, डिटेल में देखना है देन यू कैन वॉच दैट सीरीज। चलो आगे चलते हैं। Find the breadth of rectangular plot of land whose area is this। हमें एरिया दे रखा है 660, दिस इज माय एरिया। ओके, और लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 33। हमें कह रहे हैं कि ब्रेड्थ फाइंड करो। ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी है तो उसमें कुछ ज्यादा मुश्किल करना ही नहीं। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय बी। वैल्यूज पुट कर दो, 660 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ 33 मीटर इंटू ब्रेड। ब्रेड कितना आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर अपॉन 33 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, इसकी कटिंग करेंगे आएगा 20, राइट। तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 20 मीटर्स। इजी। चलो आगे करते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आने शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज दिस। हमें लेंथ दे रखी है 75 मीटर्स की, हमें ब्रेड्थ दे रखी है 32 मीटर्स की। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ $3 पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर यूनिट स्क्वायर है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मतलब कि हमें उसके एरिया की बात कर रहे हैं, हमें उसको पूरे लेवल करना है, मतलब कि उसको एक बराबर करना है, तो एरिया की बात हो रही है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया के जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसका एरिया कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के लिए। 75 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आएगा, 10 एंड देन इट विल बी 14 2 4, यस। तो कितना है, 2400 मेरा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट पूछी है, अब खुद सोचो वो पर मीटर की है, 1 मीटर स्क्वायर की। जैसे हमने अभी देखी थी ना, अभी जो हमने एनिमेशन देखी थी उसमें, उसमें एक इतना बड़ा फील्ड है, उसमें 1 मीटर की हमें कॉस्ट, इतने को कवर करने की हमें कॉस्ट बता रखी है, वो है $3, इतने की कॉस्ट। तो हमारे पास एरिया तो बहुत बड़ा है, तो पहले इसको हम स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड करेंगे एंड देन ऐड करते रहो। टाइम तो बहुत होता है हमारे पास एग्जाम में। सुनो, इजी वे क्या है इसको करने का, अगर इतने से एरिया की कॉस्ट $3 है तो पूरे फील्ड की कितनी होगी,
ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है $3, तो 24 की कितनी होगी? यस, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 2400 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा दैट इज $7200, राइट। सिंपली बस मल्टीप्लाई करना था, हमारा बचपन का तरीका, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, वही चीज वैसे तो, ठीक है ना। एक की कॉस्ट पता है, ज्यादा की फाइंड करनी, देन सिंपली मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट, पहला पहला पार्ट तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे हमसे, दे वर आस्किंग ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय टू टेक 4 राउंड्स ऑफ कोर्टयार्ड। अब ये कोर्टयार्ड है, अगर बॉय हमारा यहाँ पे है, इसको 4 राउंड लगाएगा तो क्या होगा, मतलब कि पेरीमीटर को 4 बार कवर कर रहा है। पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × L + B, 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो कितना आएगा मेरे पास, ये 2 × 5 to 7 एंड इट इज 10, 107 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 142, पेरीमीटर कितना हो गया हमारे पास, यूनिट है मीटर, पेरीमीटर निकाल लिया। अब बोला है वो 4 राउंड ले रहा है, 4 बार कवर कर रहा है, तो पेरीमीटर को 4 टाइम्स ऐड कर दो, ऐड कर सीधा इजी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 द 16, 165, 4 to the 8, तो 856 मीटर्स वो कवर करेगा अगर वो 4 बार राउंड लेगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर ऑफ रूम इज दिस लॉन्ग एंड ब्रेड, फिर से हमें लेंथ दे रखी है 8 मीटर की और ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर की, इज टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। अभी यहाँ पे फिर से लेते हैं हम, ये फिर से मेरा एक रेक्टेंगुलर है, तो मुझे यहाँ पे फिर से अब स्क्वायर टाइल लगानी है, जैसे क्वेश्चन पीछे करा, पिछले करा वैसे ही सेम है, बट अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ईच स्क्वायर टाइल है उसका जो साइड है इसकी कितनी है, 0.8 मीटर की है। अब पीछे वाले और इसमें क्या फर्क है, पहले हमें बता रखा था कि जो कॉस्ट है वो एक स्क्वायर यूनिट की कॉस्ट बता रखी थी, अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर यूनिट दिया नहीं हुआ, हमें पहले इसका एरिया फाइंड करना होगा, ओनली देन वी विल एबल टू डिवाइड, पहले तो मैं डिवाइड ही करा। ओके, सो एरिया निकालेंगे सबसे पहले अपने रूम के फ्लोर का, तो वो क्या आएगा, L × B विच इज 8 × 6, राइट। अगर मैं अब इसका भी एरिया निकाल लूं स्मॉल टाइल का, तो वो एरिया कितना आएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मल्टीप्लाई नहीं भी मैं करूंगी क्योंकि काम आसान होने वाला है हमारा भी इसके बाद। तो अब देखो, अब खुद इमेजिन करो, एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो उसी रूम को देखो ध्यान से, उस रूम का जो फ्लोर है, वो फ्लोर का एरिया तुम्हें पूरा पता है कि पूरा इतना एरिया है, ठीक है। अब तुम्हें वहां पे टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तुम्हें उसका भी एरिया पता है कि ये, अब तुम कितने टाइल्स खरीद के लेकर आओगे, तुम्हें ये निकालना है। ओके, क्वेश्चन देखो, जिस रूम में आप बैठे हो आपको उसका एरिया दे दिया कि इतना एरिया है जी, और जो वहां पे हमने स्क्वायर टाइल लगानी है उसका भी आपको एरिया पता लग गया कि इतना है। अब आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगाओगे, कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी वहां पे। अगर मैं इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, एरिया कितना है इसका 8 × 6, नीचे कितना आएगा 0.8 × 0.8, डिवाइड करने में मेरे पास क्या निकल आएंगी, मेरी नंबर ऑफ टाइल्स। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक और 10 से, 2 डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, 8 से 8 कट जाएगा, कटिंग करो, 6 2 से करेंगे 3 एंड हियर 4, फिर 5 2 एंड देन ओके, तो कितना आ गया 25 से 75, तो मेरे पास रूम में 75 टाइल्स लगेंगी। तो नाउ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि आपके रूम में कितनी टाइल्स लगने वाली है। अभी हमें रेट दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट $7 पर टाइल, अगर एक टाइल को लगाने की कॉस्ट $7 है, तो अगर एक टाइल की कॉस्ट कितनी है $7, तो 75 टाइल्स को लगाने की कॉस्ट कितनी होगी, वही सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 75, कितना आ जाएगा 35 3 5 5 2 5 to $5। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट तो यही था कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी कैसे है, दोनों के एरियाज को डिवाइड करके, अच्छा ये एरिया इतना ले रहा है, फिर नेक्स्ट टाइल भी इतना, नेक्स्ट टाइल भी इतना, नेक्स्ट भी इतना, लाइक दिस हम कर करके निकालेंगे। ओके, तो दिस वाज द इजियर वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है देन वी आर ऑलवेज देयर ऑन टेलीग्राम फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।